Okay, students. So today we have there is a comparison about. Okay, Good evening, sir. we have about. Okay, uh, about and on. Both these two words, comparison. Where to use? Mostly students क्या करते हैं कि इनके यूज में गलतियां होती हैं. So this comes in the common error. Okay. So I want to tell you about. Okay. इसका यूज कहाँ पर होता है? देखो, अबाउट का जो यूज होता है वो मोस्टली मीन्स टू टॉक अबाउट ऑर्डिनरी. ओके, टॉक अबाउट ऑर्डिनरी और मोर जनरल थिंग्स. Okay, means more general kinds of communication or ordinary communication about this. But if we talk about on, what on suggests that a book or talk. Okay, it suggests Yes, us sir. about a book or talk, right? that Right. is that is more serious or suitable for specialists. Okay, so I write Yes. here more serious means more serious talk, a book, very important book, or it is suitable. Okay, suitable for suitable for specialists, right, everybody? So Right. I repeat again, like about and on का जो comparison है. Okay, it is about the comparison of we compare that because mostly students make errors in this. Okay, so इसका example क्या है? What are the comparing examples are there? ठीक है, जैसे हमने मान लो example. Okay, it's a example, a book. Okay, for children, a book for children about Indian, about India. Okay, India and its people. Okay, so if there is a book about India and its people, okay, so we can talk about here. We can use peoples also because peoples related to particular country, so that we can use here peoples also. Otherwise, people itself plural. And if we take example of on, so in the case of a textbook on Indian history, we can say, or a book on Indian history, right? So Right, sir. यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अबाउट जो है वो ऑर्डिनरी और मोर जनरल थिंग्स के बारे में हमें बताता है. सो वेयर टू यूज अबाउट और कहाँ पर हमें ऑन का यूज करना है, इट टेल्स अस अबाउट दैट. ओके, ऑन का यूज क्या है? जैसे कोई बुक और टॉक बहुत सीरियस हो या सुटेबल फॉर स्पेशलिस्ट हो, देन वी यूज ऑन, अदरवाइज वी यूज अबाउट. और जैसे एग्जांपल है, अ बुक फॉर चिल्ड्रन अबाउट इंडिया एंड इट्स पीपल्स. ओके, सो हम अबाउट जो है यहाँ पर ऑन करें तो वुड नॉट बी सुटेबल. अ टेक्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री. उसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अ कॉन्वर्सेशन. A conversation Excuse me, about. sir. Yes. So the in the first sentence, people is already blue. So why are we using Well, s? for a particular countries people, we can use peoples here, otherwise people. Okay, so Yes, sir. a conversation about money. Okay, so a conversation about money हम कह सकते हैं, or otherwise a lecture on economics. So a lecture on economics. ठीक है.
Yes, sir. Is that clear to you? Yes, sir. If there is even a Yes, sir. doubt, I want to tell you, I have one more example for you. Like, let's take example. You would more be easy in understanding, okay? I write here the information about computers. About computers, okay? And the second sentence, the information about computer, okay? So here, sorry, I have written about 2 times here. I mean to say on the information on computers and the information about computers. Now, इन दोनों sentences में difference क्या है? अब इन दोनों sentences में difference ये आ रहा है कि ये general computers के बारे में information दे रहा है. The information about computers, getting? और the information on computers, मतलब कि computers के अंदर क्या information है. So किसी particular information, मतलब हम यहाँ पर computers ना करके computers use करते हैं, okay? So it is telling us about the information on computer. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्या है, उसके अंदर फाइल्स में क्या रखा है, क्या स्टोर किया है, उसकी हार्ड डिस्क में क्या है. सो इट इज टेलिंग अबाउट दैट. बट इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर क्या एक जनरल चीज है जो कंप्यूटर्स के बारे में हमें पता है कि कंप्यूटर्स का काम क्या होता है. इज दैट क्लियर टू यू फ्रॉम हियर द डिफरेंस अबाउट एंड ऑन? Yes, Yes. sir. ओके, It's clear. Yes, sir. यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना इसमें आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here it is over about the about and on. Now let's move to another, words that students they make, more this. About to का use कहाँ पर होता है? अब about to का क्या है? About के साथ हम क्या use कर रहे हैं यहाँ पर? Infinitive. सभी को पता नहीं यहाँ पर infinitive हो रहा है use. Do you know about infinitive? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, sir. about का हम क्या यूज कर रहे हैं? about प्लस infinitive. अब about के साथ infinitive का यूज हो रहा है, मतलब to के साथ, right? Sir, what is infinitive? Arav, I have already taught this. You should go for the previous classes. If you keep on asking me, again and again, infinitive होता है जो to के साथ verb लगी होती है, जैसे to go. So this is infinitive. क्योंकि preposition के बाद कभी भी verb नहीं आती है, verb के बाद preposition आती है, तो यहाँ पर क्या है? to जो है वो हमारा infinitive का part रोल कर रहा है. To go. अगर मैं कहता हूँ I want to go, I want to go to market. Okay, so here to go is infinitive के साथ हमारी basic form बन गई verb की, right? So this is that. Thank you, sir. Thank you, sir. So here about plus infinitive, okay, यहाँ पर इसका यूज हो रहा है. Now, like it distracts somewhere. तो about to मैं बता रहा था आपको. about to का मतलब क्या होता है कि about हम कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है? going to do something, just going to. आप जैसे कहते हो, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ for your comfortableness, just going to. इसका मतलब क्या है? you're going to. You would understand here with example. मैं कहता हूँ don't go out now. Okay, we're about to have lunch. We're about to have lunch. Okay, कई बार ऐसा होता है कि आप भी कहते हो कि अब मत जाना कहीं भी,
हम लंच करने वाले हैं और लंच करने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक लंच की जगह हमने क्या कहा, वी आर अबाउट टू हैव लंच. ओके, सो यहाँ पर इस तरह से इसका यूज हो गया. एक और एग्जांपल दे देता हूँ. आई वॉज अबाउट टू go to bed. Okay, I was about to go to bed when the telephone or when the phone rang. When the phone rang. तो मैं सोने जा रहा था. Okay, I was about to go to bed when the phone rang, or we can say when the doorbell rang. Okay, this way around. Another thing what I want to tell you is not about to. Okay, it is not about to. अब नॉट अबाउट टू का मतलब क्या होता है? नॉट अबाउट टू का मतलब है जब जहां पर अनविलिंग हो, अनविलिंग टू, ओ सॉरी, अनविलिंग टू, राइट? मतलब आपकी इच्छा नहीं कर रही है किसी चीज को करने की. अनविलिंग क्या कहते हैं? कि जो आपकी इच्छा ना हो. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट आई वांट टू प्रोवाइड यू दिस नॉलेज आल्सो. आई एम नॉट एबल टू pay ₹1,000 for that shirt. So I'm not able to pay ₹1,000 for that shirt. It means I'm not willing to. Not willing means I'm unwilling to pay ₹1,000 for that shirt. तो जहां पर हमारी इच्छा ना हो तो हम इसका यूज उस तरह से कर सकते हैं, not about to. Clear? Yes. Yes, sir. Sir, clear. Okay. And I hope that you all are writing also as well along with. Yes, sir. Okay. Now the more important part is that above and over. Okay. It is about above and over. We have to use above and over. Please mute yourself, everybody. Okay. देखो, above और over का हम यूज कहाँ करते हैं? एक तो दोनों का यूज कहाँ होता है? जहां पर कोई चीज हायर देन हो. ओके. हायर देन, दोनों का यूज जो है वो हायर देन के लिए यूज होता है, राइट? हायर देन का यूज, ओके, मतलब कोई भी चीज जैसे हायर देन हो. जबकि हम अबव का मोस्टली बहुत कॉमन लेते हैं. इसका यूज एग्जांपल के तौर पर मैं देना चाहूंगा. द mirror is above or over the sink or wash basin, you can say, right? So the mirror is above or over, दोनों लग सकता है यहाँ पर, right? जैसे हम कहते हैं the water came up above or over our knees. Like these days, as flood coming, you're walking somewhere on the road, so and somewhere it is jam packed, like in cities, Chandigarh, Delhi, or Punjab areas, so the flood water that goes inside the house also when you walk on the road, so you say that, oh, it came above our knees or over our knees. So that way around you can say that. Okay. And now the comparison of these two, when I said that higher than, दोनों का यूज मैंने केस में किया कि दोनों का यूज जब किसी चीज से हायर हो. ओके, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी किया गया है, नॉट डायरेक्टली.
अब क्या कह रहा है यहाँ पर, नॉट डायरेक्टली ओवर। अगर नॉट डायरेक्टली ओवर है देन वी यूज अबव। ओके, जब बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं है देन हम यूज करेंगे अबव। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, we have a house above the river, above the river। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, हम इसे ओवर द रिवर नहीं कहेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट ओवर द रिवर। ओके, दिस वुड बी रॉन्ग अगर हम इसको लिखते क्या है, ओवर द रिवर, क्योंकि अबव द रिवर जैसे कहा है नॉट डायरेक्टली ओवर, बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं है। अब नदी के ऊपर बिल्कुल सीधे घर हो सकता है क्या, वो नहीं हो सकता। मतलब कि No, sir. नदी की जो हाइट है, जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना, इसमें भी कहते हैं अबव सी लेवल, ठीक है, तो हिमाचल अबव सी लेवल कितना है, तो हमारा जो हिमाचल है वो बिल्कुल समुद्र के ऊपर थोड़ा नहीं है, उसका वो क्या लेते हैं, हम सी लेवल लेते हैं कि सी का लेवल यहाँ पर इतना चल रहा है तो हमारी हाइट यहाँ पर इतनी है। सो इन दैट केस, ठीक है, क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो जब हम Yes, sir. नॉट डायरेक्टली ओवर Yes, के sir. यूज, जब नॉट डायरेक्टली ओवर का यूज करते हैं देन वी यूज अबव, राइट। अब दूसरा जो एक और यूज है आ रहा है, दैट इज कवरिंग। ओके, कवरिंग, कवरिंग के केस में हम ओवर का यूज करेंगे। कवरिंग के केस में हम किसका यूज करेंगे, ओवर। अब कवरिंग क्या है, ठीक है, जैसे कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है, ठीक है, तो उसमें हमारा जैसे बट मतलब उसमें क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, जस्ट वेट, देयर इज क्लाउड ऑल ओवर, हमारे चारों तरफ क्लाउड है, ठीक है, देयर इज क्लाउड ऑल ओवर, तो चारों तरफ क्लाउड है, तो क्लाउड ने क्या किया है, हमें कवर किया हुआ है। इन विंटर्स व्हाट यू डू, you put on pants over your warmer, right? आप सर्दियों में क्या करते हैं, वार्मर पहनते हैं और उसके ऊपर अपनी पैंट्स पहन लेते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। सो यहाँ पर ओवर आएगा, अबव नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर मान लो, Yes, अगर मान लो, sir. ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो कोई व्यक्ति सोया और उसको ठंड लग रही है, आपने उसको ब्लैंकेट देना है, तो हम क्या चीज यूज करेंगे, अबव या ओवर? Over. यस, ओवर का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, Over. ओवर। अब वन मोर इज देयर अबाउट मेजरमेंट में, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ मेजरमेंट्स का, ठीक है, बट इसका फिर से मैं देता हूँ। मेजरमेंट्स में हम अबव का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा अबव सी लेवल, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या यूज हो जाता है, अबव सी लेवल। तो सभी को मालूम है अबव सी लेवल का कहाँ कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से Yes, sir. अबव का हम एक और भी यूज करते हैं, मतलब कि इंटेलिजेंस के रूप में भी अबव को यूज करते हैं। मीन्स somebody is above others, intelligence, she is above in intelligence, we can use that way around। okay, so इसके
तरह हम यूज कर सकते हैं. Or we can say that the temperature is above, this degree of temperature. Okay, so that way around also it can be used. Or then after we have the another example related to ages also, speeds also. Okay, इस इनमें अगर more than है, अगर एजेस और स्पीड्स में इनसे मोर देन है तो हम यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे. ओके, Yes, sir. जैसे कहते हैं, आपने मूवीज देखते हैं सभी. ओके, तो मूवीज में Yes. Yes, क्या sir. लिखा था? ओवर 18 years लिखो तो ना, आप भी देखते हो. इज दिस ओवर 18 years? सब मैक्सिमम मूवीज आजकल जो आती हैं वो ओवर 13 years दी जाती हैं, राइट? Yes, sir. So Yes. this you need to see over 18 years. So ages के रूप में आ गया इसका यूज. ठीक है. और कई बार आप कहते हैं कि वो इतनी की स्पीड से चला रहा था गाड़ी को. सो ओवर 140 किलोमीटर पर आवर, उसकी वो इतना तेज चला रहा था. 140 किलोमीटर के से भी तेज, मतलब उतना. सो ओवर 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रहा था. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. So clear. Having any doubts, so you can ask me, right? No, sir. No doubt. Okay. No, sir. And then finally we go for that. We have the use of इसका books and papers में भी यूज होता है. ओके, बुक्स एंड पेपर्स के लिए भी इसका यूज होता है. अब जैसे द above mentioned क्या हो गया कि ऊपर लिखे अनुसार. ठीक है. द above रूल्स भी कह देते हैं आप. above rules and regulations apply. जब आप फॉर्म को भरते हो, अप्लाई अकॉर्डिंग टू और द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन above. ओके. Yes. और कई बार दिया होता है सी ओवर. सी ओवर का मतलब क्या है नोटबुक पर? सी ओवर का मतलब है द नेक्स्ट पेज. ठीक है. मीन्स यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन द नेक्स्ट पेज. सो सी ओवर. सी ओवर मीन्स इसको पलटो, अगले पेज पर भी कुछ मिलेगा आपको. सो क्लियर अप टू हियर स्टूडेंट्स द यूज ऑफ. Yes, sir. So today we have done very common these things are, but we should have the knowledge about these things. So about and on we have learned the comparing of about and on. About का use ordinary or more general communications के लिए use होता है, whereas ऑन का यूज जो है जैसे कोई बुक या टॉक जो वो बहुत ही सीरियस हो या फिर सुटेबल फॉर द स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशलिस्ट जो उसके हो, तो उनके लिए एग्जांपल्स गिवन हियर, राइट. एक एग्जांपल मैं आपके लिए लाया था, द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर्स और द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स. तो यहाँ से हमें बहुत क्लियर हो जाता है इसका डिफरेंस कि इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर्स मतलब कि जो जनरल कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी और जनरल कम्युनिकेशंस के लिए, एंड द स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशंस के लिए हमारा क्या है, ये ऑन का यूज है. तो यहाँ से हमें एक और बात क्लियर चलती है पता कि ये जो है अबाउट इज इनफॉर्मल. इट इज द वे ऑफ इनफॉर्मल वेज. ओके, वेज इनफॉर्मल. और जो इसका यूज जो होता है इट इज फॉर द फॉर्मल. This we can also make a kind of conclusion about this. And if we talk about to, तो about to का जो infinitive के साथ हमने यहाँ पर यूज किया है, that is
कि जस्ट गोइंग टू, आप कोई काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं. सो यू कैन यूज आई एम गोइंग टू डू दिस की जगह हम अबाउट टू डू दिस. ओके, डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच. तो इस तरह से यू कैन मेक द एग्जांपल ऑफ दिस. एंड नॉट अबाउट टू का मैंने आपको बताया अनविलिंग के साथ है. देन वी कम टू अबव एंड ओवर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो राइटिंग का भी और स्पीकिंग के पार्ट में भी. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है. आई रिपीट इट अगेन, हायर देन, इन दोनों का यूज जो होता है मैक्सिमम हम क्या करते हैं जब कोई चीज हायर देन हो. जैसे एग्जांपल दिया, द मिरर इज अबव और ओवर द सिंक और द वॉश बेसिन. ओके, तो इस तरह से. बट कई जगह पर इनको हम दोनों को नहीं यूज कर सकते हैं. एक तो कहाँ पर, जहां पर नॉट डायरेक्टली ओवर हो, बिल्कुल ऊपर ना हो. जैसे हाउस अबव द रिवर, तो अबव द रिवर ये नहीं होगा कि बिल्कुल नदी के ऊपर, ठीक है, आसमान में लटका दिया घर, वो नहीं हो सकता. सो मतलब सी लेवल जैसे हम कहते हैं, या उस लेवल से ऊपर है. सो दैट इन दैट केस वी यूज इट. ओके, कवरिंग के केस में हम ओवर का यूज करते हैं. मान लो आपने टेबल के नीचे झाड़ू रखा होता है कई बार, या बेड के नीचे झाड़ू, ठीक है. सो यू कैन यूज दैट, द टेबल इज ओवर द ब्रूम. ओके, दैट वे राउंड वी कैन यूज. या कोई चीज आप उस तरह से कवर कर रहे हैं, बट इन दैट केस वी यूज अंडर. दैट वी विल डिस्कस द अदर टाइम. मेजरमेंट्स के केस में जैसे मैंने सी लेवल बता दिया आपको, उस तरह से हम इसका यूज करते हैं, मेजरमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं. ओके, और मेजरमेंट में किसी भी हो सकता है, किसी का रैंक हो सकता है, या फिर कोई इसमें इंटेलिजेंस में ज्यादा सुपीरियर हो सकता है. सो इन दैट केस एजेस और स्पीड्स के केस में भी मोर देन जब हम करते हैं यूज उसका, तो दैट इज ओवर का यूज करते हैं. यहाँ पर अबव का नहीं करते. तो ओवर 18 ईयर्स या ओवर 140 स्पीड, या जो भी स्पीड आपको लगे तो उसमें आप कह सकते हैं. ओवर 90 भी कह सकते हैं. ओके, बुक्स एंड पेपर्स में भी इसका यूज होता है. द अबव मेंशन रूल्स, उस तरह से हम इसका यूज करते हैं. और सी ओवर का मतलब क्या है, द नेक्स्ट पेज. Okay, everybody, if you have any doubt, you can ask me.